Hello everyone, I would like to welcome you all to our first ever series for foundation exams, How to Ace Foundation Exams. Our today's session, our today's guidance session is on the subject Business Mathematics, Logical Reasoning and Statistics. Our speaker for today is Jai Ketan Parekh. It is my honor to introduce Sir because he has been my mentor as well. Sir has done his engineering from VJTI. He has been into teaching since 10 years and has been making students love mathematics since then. So without taking any further time, I would like to call upon Jai sir, and sir, the Zoom speaker screen is all yours. Thank you. Thank you so much, Sanika. Good morning, everyone. Okay, we'll have a fresh start again. So let me just give you a brief idea कि हम ये पूरा सेशन कैसे कंडक्ट करने वाले. जिन्होंने लेट ज्वाइन किया मैं उनको बता दूं. I'll first give you the opportunity to ask me the doubts from ICAI mock test papers. After that, I'll give you a brief idea about how to prepare one day before your Maths CA Foundation exam. Then specially for non-math students जिन्होंने 11th-12th में SP लिया था, मैं उनको गाइड कर सकता हूँ कि अगर आपको कंफर्टेबल मार्क्स के साथ मैथ्स वाला सब्जेक्ट क्लियर करना है तो विच ऑल टॉपिक्स यू कैन थिंक ऑफ कीपिंग इट इन ऑप्शन इफ एट ऑल यू वांट टू. ओके, एंड इसके बाद अगर एक्स्ट्रा टाइम बचता है तो you can ask me your conceptual doubts or any other doubts from the questions outside the mock test paper. Okay, if the time permits. Alright. अब actually I started my session at 10:30. तब मैंने जो students थे उनको पूछा था कि अगर आपको mock test paper में कुछ doubt है तो you can raise your hand. Okay. So जो लोग computer से meeting attend कर रहे हैं तो अगर आप participants का list open करोगे ना, वो list के नीचे आपको raise hand का option दिखेगा. और जो लोग मोबाइल से ये लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, मोबाइल के स्क्रीन को अगर आप टच करोगे तो आपको नीचे ऑप्शंस का एक बार दिखेगा. वहां पे मोर ऑप्शंस में जाके आपको रेज हैंड करके एक ऑप्शन दिखेगा. सो इफ यू रेज योर हैंड, आई विल कम टू नो कि आपको डाउट है. मैं उस स्टूडेंट को अनम्यूट करूंगा एंड देन यू कैन टेल मी द क्वेश्चन नंबर एंड वी कैन डिस्कस द डाउट्स. ओके, सो वी वर एक्चुअली अबाउट टू स्टार्ट विथ डिफिकल्ट एमसीक्यूज फ्रॉम द मॉक टेस्ट पेपर, बट उसके पहले जो लोग अभी रिसेंटली ज्वाइन हुए हैं, तो अगर आपने मॉक टेस्ट पेपर ऑलरेडी सॉल्व किया है और आपको कुछ क्वेश्चंस में डाउट है तो यू कैन प्लीज रेज योर हैंड. आई सॉल्व द डाउट फर्स्ट एंड देन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ अच्छे क्वेश्चंस डिस्कस करना बाकी रह गए तो मैं सामने से वो डिस्कस करूंगा. सो अगर आप में से किसी को भी कोई क्वेश्चन में डाउट है फ्रॉम मॉक टेस्ट पेपर, प्लीज रेज योर हैंड. I think someone messaged me. Swanand, you had some doubt in some question. Can you please raise your hand? Yeah. Yes, Swanand. You can unmute yourself. No problem, Swanand. You can tell me the question number in the chat box if your mic is not working. Question number 38. Okay. Are you talking about this question, Swanand? Question number 38. Okay. ठीक है, might as well. Let's start with this question only because ये भी एक अच्छा question है derivatives का. Everyone look at question number 38. Now,
they have given us x into root of 1 plus y plus y into root of 1 plus x equal to 0, and you need to find out 1 plus x the whole square into dy by dx is equal to what? 1 plus x the whole square into dy by dx. Okay. So now अगर मैं ये इक्वेशन को एज इट इज रख के डिफरेंशिएट करेगा, इट विल गेट वेरी कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज यहां पर दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है, यहां पर भी दो फंक्शंस मल्टीप्लिकेशन में है. अगर हम इसको एज इट इज डिफरेंशिएट करेंगे, वी हैव टू यूज यूवी रूल, एंड इन दिस फॉर्मेट यूवी रूल विल गेट वेरी कॉम्प्लिकेटेड. तो मैं पहले ना ये इक्वेशन को सिंप्लीफाई करने का ट्राई करता हूं, एंड सिंप्लीफाई करने के बाद अगर मैं डेरिवेट करूं तो मे बी इट विल बी लेस कॉम्प्लिकेटेड. सो हाउ एम आई गोइंग टू सिंप्लीफाई इट? मैं ये टर्म को ना राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रहा हूं. सो दैट्स x into root of 1 plus y. ये राइट में जाएगा तो आएगा minus y into root of 1 plus x. Now I am getting rid of this square root by squaring both sides. So this will become x square. यहाँ से रूट निकल जाएगा तो बनेगा 1 plus y. Here minus y का square will be y square, और यहाँ से रूट निकल जाएगा, so that's 1 plus x. Now I'm opening up the brackets. So this will be x square plus x square y equal to y square plus xy square. अच्छा, अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ. मैं ये y square को लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा हूँ और ये x square y वाले टर्म को राइट में शिफ्ट कर रहा हूँ. तो y square जब लेफ्ट में जाएगा तो माइनस बन जाएगा. That will be x square minus y square. इधर ऑलरेडी x y square है, ये टर्म को राइट में शिफ्ट कर दूं तो इट विल बी माइनस एक्स स्क्वायर वाई. नाउ ये स्ट्रक्चर देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला है, तो इसको मैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी वाले फॉर्मेट में लिख सकता हूं. एट द सेम टाइम राइट हैंड साइड में हम दोनों टर्म से एक x और एक y कॉमन निकाल सकते हैं. सो इफ आई टेक आउट एक्स वाई कॉमन, तो फर्स्ट टर्म से y बचेगा माइनस सेकेंड टर्म से x बचेगा. नाउ सी, वंस आई डू दिस, व्हाट आई रियलाइज, ये x माइनस y और ये y माइनस x में कनेक्शन हो सकता है. तो मैं क्या कर रहा हूं, इस ब्रैकेट में से माइनस साइन कॉमन निकाल रहा हूं. सो इफ आई गॉट माइनस साइन कॉमन, तो ये जो नेगेटिव टर्म है वो पॉजिटिव बन जाएगा, और ये जो पॉजिटिव टर्म है वो नेगेटिव बन जाएगा. एंड नाउ x माइनस y, हम ये दोनों ब्रैकेट को कैंसिल कर सकते हैं. तो माई सिंप्लीफाइड फॉर्म इज दिस, x प्लस वाई इक्वल टू माइनस एक्स वाई. और इसको अगर अब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो तकलीफ कम होगा. So now I'll differentiate with respect to x. तो x का डेरिवेटिव इज 1, y का डेरिवेटिव इज dy by dx इक्वल टू, ये माइनस साइन एज इट इज रखेंगे, x इंटू वाई के लिए हम u इंटू v का डेरिवेटिव यूज कर सकते हैं. तो u इंटू v का डेरिवेटिव विल बी x into derivative of y, which is dy by dx, plus y into derivative of x, which is 1. Now take this minus sign inside, so you get 1 plus dy by dx is equal to minus x dy by dx minus y. अब मैं क्या कर रहा हूं, ये जो dy by dx वाला टर्म है इसको लेफ्ट में शिफ्ट कर रहा हूं और इस 1 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर रहा हूं. तो आई गेट dy by dx, ये टर्म लेफ्ट में आएगा तो प्लस x dy by dx
1 goes on right hand side, it will become -1. So it is -1 minus y. Now left hand side में I am taking dy by dx common. Right hand side में I am taking minus sign common. So when I do that, this is what I get. 1 plus x dy by dx, और यहां से माइनस साइन कॉमन ले लिया तो 1 प्लस वाई आएगा. अच्छा, अब ना उनका फाइनल क्वेश्चन ये था, they want us to find this 1 plus x the whole square into dy by dx. तो ये क्वेश्चन आंसर करने के लिए what I'm going to do is I'm going to multiply both the sides with 1 plus x. Yes, मैं दोनों साइड को 1 plus x से मल्टीप्लाई करेगा. So when I do that, 1 plus x into 1 plus x will become 1 plus x the whole square into dy by dx, जो मेरा मेन क्वेश्चन है. इक्वल टू राइट हैंड साइड में आएगा माइनस ऑफ 1 प्लस वाई इंटू 1 प्लस एक्स. नाउ आई विल बी एक्सपांडिंग द ब्रैकेट्स ऑन द राइट हैंड साइड. तो माइनस, जब हम इन ब्रैकेट को एक्सपांड करेंगे 1 इंटू 1 इज 1, 1 इंटू एक्स इज एक्स, y into 1 is y, and y into x is xy. But if you look at the options they have given to us, मैं वापस पेपर शेयर कर रहा हूं. अगर क्वेश्चन नंबर 38 में आप ऑप्शंस देखोगे, सारे ऑप्शंस में नंबर्स इन्वॉल्व है. x और y किधर इन्वॉल्व है ही नहीं. मतलब डेफिनेटली वेरिएबल्स जो है वो कैंसिल आउट होने वाला है. ना हाउ डू वी कम टू नो कैसे कैंसिल होगा? वेरी सिंपल. सब लोग ना, अगर मैं माइनस साइन को अंदर लेके जाऊं, दिस बिकम्स -1 minus x minus y and minus xy. Now when I look at minus xy, everyone pay attention on equation number 1. देखो इक्वेशन नंबर 1 में हमें माइनस एक्स वाई का वैल्यू क्या मिले? x प्लस वाई. सो मैं क्या कर रहा हूं, ये जो माइनस एक्स वाई है वहां पे उसका वैल्यू पुट कर रहा हूं x प्लस वाई. ओके, ये जो माइनस एक्स वाई है उधर मैं उसका वैल्यू पुट कर रहा हूं x प्लस वाई फ्रॉम इक्वेशन 1. तो माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल, माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल. माई फाइनल आंसर इज -1, एंड -1 इज गिवन इन सी ऑप्शन. तो इसका आंसर इज ऑप्शन सी. यस, आई होप ये क्लियर है स्वानंद आपको. ऑलराइट, सो नाउ आई एम शोइंग यू द फर्स्ट एंड द सेकंड बोर्ड. जिनको भी इसका स्क्रीनशॉट लेना है प्लीज स्क्रीनशॉट ले लो. जस्ट वेट फॉर अ मिनट, स्क्रीन अभी क्लियर हो जाएगा. ओके, और किसी को कोई क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड, or else you can type the question number in the chat box, even that will do. Okay, अगर किसी का स्क्रीनशॉट लेना बाकी है तो प्लीज रेज योर हैंड, or else I'll display the second board. Okay, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो. ऑल राइट, चलो.
Yes, any other doubt from the mock test paper? Okay, so should we start solving some interesting questions from the mock test? Is that okay with everyone? All right. Chalo, then let's do that. All right. Now look at question number 4, everyone. Question number 4 देखो. वो लोग बोलता है the ratio of the speed of two trains is 2:5 and the distance they have traveled are in the ratio 5:9. Then find the ratio of the time taken by them. उनके स्पीड का रेशियो दिया है, उनके डिस्टेंसेस का रेशियो दिया है और तुमको उसके टाइम का रेशियो फाइंड आउट करना है. Okay. Now speed का रेशियो given to us is 2:5. डिस्टेंस का रेशियो given to us is 5:9. उससे अपने को टाइम का रेशियो फाइंड आउट करना है. यस, देयर आर मल्टीपल वेज टू सॉल्व दिस क्वेश्चन. एक तरीका है, यहां पे इफ यू टेक x as the common multiple, and here if you take y as the common multiple, तो वी कैन से इनका जो स्पीड है that is going to be 2x and 5x, and इनका distance is going to be 5y and 9y. Now you know टाइम जो है, टाइम का फॉर्मूला क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. सो विद दिस फॉर्मूला अगर आप दोनों का टाइम कैलकुलेट करो तो पहले वाले का टाइम आएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 5y अपॉन 2x, एंड सेकेंड वाले का टाइम आएगा 9y अपॉन 5x. एंड नाउ दोनों का टाइम मालूम है तो आप उनके टाइम का रेशियो ले सकते हो. इट इज गोइंग टू बी 5y अपॉन 2x डिवाइडेड बाय 9y अपॉन 5x. तो x x y y gets cancelled. Now 5/2 divided by 9/5 can be written in this form, 5/2 divided by 9/5. और आप ये डिविजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट कर दो. So that is 5/2 into 5/9. So your ratio will be 25/18. Yes, 25/18 is C option. Exactly. आई होप ये सबको क्लियर है. ओके, you can take the screenshot if you want. So let's go to the interesting one.
Look at question number 6. Question number 6 देखो. They want us to find value of x plus y, and they have given us this equation: x plus y cube upon x square the whole raised to minus 1 minus x square upon y plus y square upon x the whole raised to minus 1 plus x cube upon y square plus y the whole raised to minus 1 equal to 1 by 3. Yes. So now how will we simplify this? हम लोग ना पहले हर जगह पे LCM लेते हैं. So if you take LCM, x square into x, so this is going to be x cube plus y cube the whole upon x square the whole raised to minus 1. Here if you cross multiply and take LCM, it will be x cube plus y cube the whole upon xy raised to minus 1. Here if you take LCM, it is going to be x cube plus y cube upon y square the whole raised to minus 1. अच्छा, अभी हमने लॉ ऑफ इंडाइसिस में क्या सीखा है? अगर हम पूरे टर्म का रेसिप्रोकल ले ले तो पावर का साइन चेंज होता है. सो इफ आई टेक रेसिप्रोकल ऑफ ईच एंड एवरी टर्म, तो ये जो सब पावर -1 है वो -1 से 1 बन जाएगा, है ना? तो दिस विल बिकम x square upon x cube plus y cube the whole raised to 1. And you know, जब भी पावर 1 होता है, we never mention it. इधर भी रेसिप्रोकल ले लो, xy upon x cube plus y cube, y square upon x cube plus y cube. This is equal to 1 upon 3. अब बिकॉज ये सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो आप न्यूमरेटर को ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो. यू कैन ऐड सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर. तो आपका न्यूमरेटर ऐसा बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर द होल अपॉन एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब. एंड अभी हम सब ने ना स्कूल लेवल पे बचपन में फॉर्मूला पढ़ के रखा है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब. हमने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या पढ़ा है? ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. वही वाला फॉर्मूला अब मैं इधर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब के लिए यूज कर रहा हूं. ओके, सो आई एम कीपिंग द न्यूमरेटर एज इट इज, एंड इन द डिनोमिनेटर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. सो न्यूमरेटर वाला एक्सप्रेशन और ये वाला एक्सप्रेशन कैंसिल, सो आई एम लेफ्ट विथ 1 upon x plus y is equal to 1 upon 3. So इससे क्लियरली पता चलता है कि x plus y का वैल्यू is 3, and that is what the question is, and 3 is given in second option. I hope this is clear to everyone. Okay. So please take the screenshot. All right.
चलो लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी सब लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखो। लुक एट क्वेश्चन नंबर 10। वो बोलता है इफ वन ऑफ द रूट ऑफ द इक्वेशन इज 2 प्लस रूट 5, तो फिर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगा। ठीक है, बोलता है कोई तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका एक रूट 2 प्लस रूट 5 है, तो अपने को उससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिगर आउट करना है। अच्छा, नाउ डू यू एग्री, वो लोग ने ये जो रूट दिया है 2 प्लस रूट 5, नाउ बिकॉज ऑफ दिस रूट 5 ये एक इररेशनल नंबर बन गया है ना। रूट 5 वो एक इररेशनल नंबर है। यस, दैट मीन्स वो लोग ने जो रूट दिया है वो इररेशनल है। अच्छा, नाउ एज फार एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज कंसर्न्ड, एक मैथमेटिकल फैक्ट है, इररेशनल रूट अगर होगा ना तो इररेशनल रूट्स विल ऑलवेज ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयर। कॉन्जुगेट पेयर मतलब अगर उसका एक रूट 2 प्लस रूट 5 है तो दूसरा पक्का 2 माइनस रूट 5 ही होगा। यस, इफ द रूट्स आर इररेशनल दे विल ऑकर इन कॉन्जुगेट पेयरिंग। तो क्योंकि उसका एक रूट 2 प्लस रूट 5 है तो डेफिनेटली आप बोल सकते हो कि उसका जो दूसरा रूट है वो 2 माइनस रूट 5 ही होगा, जो कॉन्जुगेट है पहले वाले का। अब देखो इससे फायदा क्या हुआ, तुम लोग को उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का दोनों रूट्स मालूम है ना। इफ यू नो बोथ द रूट्स यू कैन गो फॉर सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स, तो जब आप ये दोनों रूट्स को ऐड करोगे ऑब्वियसली 4 आएगा आंसर। You can also go for product of the roots. So product of the roots, जब आप 2 plus root 5 और 2 minus 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो वो a plus b into a minus b के हिसाब से a square minus b square होगा। That's going to be 4 minus 5 which is minus 1. And if you know sum of the roots and if you know product of the roots, this is how you can construct your quadratic equation. It is x square minus sum of the roots into x plus product of roots equal to 0. ये उसका शॉर्टकट है, x square minus sum of into x plus product of the roots equal to 0. So that will be x square minus 4x and product of the roots अपने को minus 1 मिला है equal to 0. This is your quadratic equation. And this quadratic equation is given in the second option. Yes. I hope सबको ये समझ में आया हो। All right, you can take the screenshot if you want. All right. Now, look at question number 16. Now, question number 16 में अपने को दो inequalities दिया है। एक है 2x plus y less than equal to 10 and दूसरा है x minus y less than equal to 5. And then they have given us 2 points. पहला कि inequalities का जो solution है
इट इंक्लूड्स ओरिजिन। उनका फर्स्ट पॉइंट है कि दिस इंक्लूड्स ओरिजिन, एंड दूसरा पॉइंट है दिस इंक्लूड्स द पॉइंट 4,3, इंक्लूड्स 4,3। एंड देन इफ यू लुक एट द ऑप्शंस, हमें ये फिगर आउट करना है कि ये दो पॉइंट में से कौन सा पॉइंट करेक्ट है। अब देखो मेजॉरिटी स्टूडेंट ये क्वेश्चंस में क्या करते हैं, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ना जब ये इनइक्वालिटीज देखते हैं ना, दे स्टार्ट ड्रॉइंग द ग्राफ इन देयर रफ वर्क। यहां पे ग्राफ ड्रॉ करने का कोई जरूरत नहीं है, आप ये क्वेश्चन ओरली सॉल्व कर सकते हो। देखो वो लोग क्या बोल रहा है कि इन दो इनइक्वालिटीज का जो सोल्यूशन है, मतलब जो फिजिबल रीजन या शेडेड रीजन है, उस रीजन में ओरिजिन इंक्लूड होता है और उस रीजन में 4,3 वाला पॉइंट इंक्लूड होता है। तो हमें बस ये वेरीफाई करना है कि वो लोग ये जो बोल रहे हैं उसमें क्या सच है क्या गलत है। तो इट्स वेरी सिंपल, यू नो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट्स 0,0 होता है, तो आप ओरिजिन का कोऑर्डिनेट ये दोनों इन इक्वेशन में पुट करो। अगर ओरिजिन ने ये दोनों इन इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो इनका सोल्यूशन विल इंक्लूड दिस पॉइंट, एंड सेम लॉजिक फॉर दिस 4,3। तो मुझे बताओ, जब आप x और y के जगह पे 0 डालोगे तो लेफ्ट हैंड साइड 0 हो जाएगा। तो टेल मी, इज 0 लेस देन और इक्वल टू 10? यस और नो? एब्सोल्युटली सर, 0 डेफिनेटली 10 से कम है, मतलब ओरिजिन फर्स्ट इन इक्वेशन को तो सेटिस्फाई करता है। चेक करो सेकंड इन इक्वेशन, 0 minus 0 is 0, is 0 less than or equal to 5? yes, मतलब सर ओरिजिन ये दोनों को सेटिस्फाई करता है तो पक्का ये इंक्लूड होगा ही होगा। अब वैसे ही 4,3 के लिए चेक करो, x के जगह पे 4 डालो, y के जगह पे 3 डालो, लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा? 11 आएगा। एग्जैक्टली, एंड यू नो 11 इज नॉट लेस देन 10 एंड इट इज नाइदर इक्वल टू 10। तो इस पॉइंट ने इस कंडीशन को ही डिस्टर्ब कर दिया, तो डेफिनेटली ये गलत है। दैट मीन्स सिर्फ फर्स्ट पॉइंट करेक्ट है, एंड सिर्फ फर्स्ट पॉइंट करेक्ट है, ये ऑप्शन ए में दिया हुआ है। एग्जैक्टली। सो यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करने का कोई जरूरत नहीं है, ओरली ये सम वाइंड अप कर सकते हैं। चलो लीनियर इनइक्वालिटी वाला भी सम किया। अब सब लोग क्वेश्चन नंबर 19 देखो पहले। लुक एट क्वेश्चन नंबर 19। वो लोग बोलता है द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट on a sum of rupees 6 lakhs for 2 years is rupees 6,000. What is the annual rate of interest? मतलब 2 साल के ड्यूरेशन के लिए जब तुम्हारा प्रिंसिपल 6 लाख का है, तब सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस है वो 6,000 है। तो अपने को ये फाइंड आउट करना है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन के लिए एक शॉर्टकट है, and if you know that shortcut, it will take only 10 seconds for you to solve this question. अब ध्यान से सुनना ये शॉर्टकट। अगर तुम्हारा जो ड्यूरेशन है, if the period is 2 years, तो फिर डिफरेंस between simple interest and compound interest is always given by this formula, P into R square. That's the shortcut formula. Difference between simple interest and compound interest for 2 years is always P R square. अब देखो वो लोग ने तुमको डिफरेंस 6,000 दिए, प्रिंसिपल 6 लाख दिए, इंटू आर स्क्वायर, बराबर। तो अगर आप 6,000 और 6 lakhs को कैंसिल करोगे तो 6,000 1 जा एंड 6,000 100 जा,
और फिर ये 100 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो 1/100 इज इक्वल टू आर स्क्वायर. तो डू यू ऑल एग्री आर इज इक्वल टू 1/10 विच इज 0.1. हाँ, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट डेसिमल में है. आप ये डेसिमल को परसेंटेज में कन्वर्ट कैसे करोगे? बाय मल्टीप्लाइंग इट विथ 100. सो 0.1 को अगर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यू गेट 10%. यस, खत्म हो गया सब. तो इफ द पीरियड इज 2 years, याद रखना डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इज पीआर स्क्वायर. एंड अगर आप अपने आईसीएआई का मॉड्यूल देखोगे ना, वो लोग ने सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच का जो डिफरेंस वाला क्वेश्चन है ना, उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम पीरियड 2 years दिया है. सो दिस शॉर्टकट विल बी वेरी हेल्पफुल. बहुत टाइम बच जाएगा. Yes. So if you want, you can take the screenshot. चल, yes, Vaibhav. Sir, what if period is not 2 years? Should we have to solve it by basics? Yes, yes. If the period is not 2 years, then you have to first find out SI, you have to find out CI, and then उनका डिफरेंस के लिए जो भी एक्सप्रेशन आता है, उस एक्सप्रेशन को आपको पर्टिकुलर अमाउंट से इक्वेट करना पड़ेगा. Okay, sir. Thank you. वेलकम. ओके, अब सब लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखो. Look at question number 22. Okay. A machine was purchased for rupees 10,000. If the rate of depreciation is 10% in the first year and 5% per annum afterward, मतलब पहले साल के लिए 10% का depreciation है, उसके बाद के coming years के लिए it is 5%. You have to find out the depreciated value of the machine after 7 years of purchase, and they have given us the data 0.95 the whole raised to 6 is equal to 0.7351. okay, चलो सब लोग इधर ध्यान देना. उन्होंने आज टुडे उन्होंने एक मशीन खरीदा है जिसका वैल्यू 10,000 रुपीज है. ओके, टोटल 7 years का जर्नी है. इट्स अ जर्नी ऑफ 7 years. लेकिन उसमें उन्होंने क्या बोला है कि फर्स्ट ईयर में द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 10%. ठीक है, अब आप मुझे बताओ 10,000 का 10% कितना होता है? एकदम मारवाड़ी कैलकुलेशन है. 10,000 का 10% इस 1,000 बराबर, मतलब 1 साल बाद वो मशीन का प्राइस 1,000 से कम हो जाएगा. तो डू यू ऑल एग्री आफ्टर 1 year उस मशीन का जो प्राइस है विल बी रुपीज 9,000. डू ऑल एग्री विद दिस? अच्छा, इसके बाद जितने भी साल के लिए आप वो मशीन यूज कर रहे हो, उधर रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज 5%.
सो नाउ 7 साल का जर्नी में से आपने सिर्फ 1 साल ट्रैवल किया है, मतलब अभी भी 6 साल का जर्नी बाकी है, 6 years का जर्नी. And now the rate of depreciation is 5%, which is 0.05. तो ये 6 साल के बाद आपके मशीन का प्राइस कितना होगा, तो उसके लिए हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं. Depreciated value is given by present value into 1 minus r the whole raised to n. That's the formula. तो जब आप ये 6 साल की बात कर रहे हो तब उसका प्रेजेंट वैल्यू 9000 है. So the present value is 9000. The rate of depreciation should be in decimal, which is 0.05, and the duration is 6 years, the whole raised to 6. Now you know 1 minus 0.05 is 0.95, और वो लोग ने मेरे को डेटा में 0.95 raised to 6 का वैल्यू ऑलरेडी दिया हुआ है, मेरे को कैलकुलेट करने का भी जरूरत नहीं है. It is 0.7351. करो तो 9000 into 0.7351. 9000 into 0.7351. Correct. It is 6615.9. So you can approximate as 6616. आप उसको approximately 6616 बोल सकते हो, which is given in second option. Yes. हाँ बोलो स्वानंद. हेलो सर. हाँ बोलो. सर आवाज आ रही है ना? यस यस. सर मैंने ये मतलब अलग मेथड से किया, वो फॉर्मूला यूज ही नहीं किया मैंने डायरेक्टली 10,000 में से -10% किया फॉर फर्स्ट ईयर, और फिर हर बार और फिर 6 बार 5% 5% सब्ट्रैक्ट किया. तो तुम जो कर रहे हो वही फॉर्मूला ये कर रहे हैं. सेम, इट इज द सेम थिंग दैट द फॉर्मूला इज डूइंग. अच्छा ओके सर. यस. सो मेरा 6615.82 है, तो 6616 राउंड ऑफ किया. यस यस यस. बट आपने इनडायरेक्टली यही फॉर्मूला यूज किया है. अगर वो लोग ने मेरे को ये डेटा गिवन में नहीं दिया होता तो मैं भी वही करता जो आपने किया. ओके सर. ओके सर. यस. थैंक यू सर. वेलकम. आई होप आप लोग ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा. विल गो ऑन टू द नेक्स्ट वन. ओके चलो ये एक क्वेश्चन सॉल्व करके किधर गया, सॉरी. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई एम डिस्कसिंग ये थोड़ा हटके है. ऐसा क्वेश्चन वो लोग ने ICAI के मॉड्यूल में भी इंक्लूड नहीं किया है. लुक एट क्वेश्चन नंबर 24. लिटिल इंटरेस्टिंग. A man is borrowing 4,000 rupees from a bank at 10% compound interest. Okay, तो उसका principal amount is 4,000. उसका compound interest is 10%. फिर वो लोग बोलते हैं at the end of every year वो 1,500 rupees as a part of repayment of loan and interest, मतलब वो 1,500 रुपए का इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है हर साल के एंड में. How much is still owed to the bank after 3 such installment? मतलब ऐसे 3 इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद अभी भी कितना पैसा बैंक को वो ओ करता है. ओके अब देखो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या सोचते हैं, बिकॉज ही इज पेइंग 1,500 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर, पीपल विल थिंक अबाउट एन्युटी. बराबर. नाउ दिस पेमेंट दैट इज मेकिंग इंक्लूड्स द लोन अमाउंट एंड द इंटरेस्ट. अब उनको ना 3 पेमेंट पे करने के बाद कितना आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है ये उनको फाइंड आउट करना है. दे वांट अस टू फाइंड आउट द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल.
तो इसको हम ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, विच आई फाइंड इट वेरी सिंपल। देखो उसका जो इंस्टॉलमेंट है, इंस्टॉलमेंट दैट इज 1500 का, और वो 1500 का 3 इंस्टॉलमेंट पे करने वाला है। अब वो लोग ने क्लियरली बोला है कि इंस्टॉलमेंट जो है उससे वो दो चीज कर रहे हैं, प्रिंसिपल रीपे कर रहा है और इंटरेस्ट भी पे कर रहा है। ऑलराइट, सो देखो ऐसे 3 इंस्टॉलमेंट के बाद और कितना प्रिंसिपल पे करना बाकी है वो अपने को फिगर आउट करना है। सो वी आर फाइंडिंग द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल। नाउ प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर। स्टार्टिंग में द प्रिंसिपल दैट इज देयर इज 4000, जिस पे 10% कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है। ए व्हाट इज 4000 का 10%? 400। मतलब उसके फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में द इंटरेस्ट दैट ही इज पेइंग इज 400 रुपीज। 1500 में से 400 रुपया इंटरेस्ट पे कर रहा है, मतलब बाकी का जो 1100 है उससे वो प्रिंसिपल रीपे कर रहा है। तो 4000 में से 1100 प्रिंसिपल उसने रीपे कर दिया, तो मुझे बताओ आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कितना होगा? वेरी गुड, इट विल बी 2900। तो जब वो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट पे करेगा ना, तब वो 2900 पे 10% इंटरेस्ट पे करेगा। व्हाट इज 2900 का 10%? 290। सो नाउ द इंटरेस्ट अमाउंट इज 290। 1500 में से 290 निकाल दो, प्रिंसिपल रीपे कितना हुआ? करेक्ट, 1210। तो देखो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल 2900 था, जिसमें से उसने 1210 पे कर लिया। तो व्हाट इज 2900 माइनस 1210? करेक्ट, इट्स गोइंग टू बी 1690। दैट्स द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल नाउ। अब इस पे वो 10% इंटरेस्ट पे करेगा, विच इज गोइंग टू बी 169। तो 1500 में से 169 निकाल दो 1500 में से, तो बचेगा 1331। तो उसका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल 1690 था, जिसमें से उसने 1331 रीपे कर दिया। तो अब आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल कितना है? $1690 में से एग्जैक्टली नाउ द आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल इज 359। मतलब 3 इंस्टॉलमेंट पे करने के बाद अब वो बैंक को कितना ओ करता है? 359 रुपीज। सिंपल। And 359 is given in first option. हाँ बोलो कुश। सर मैंने सामान आप दूसरे मेथड से किया। मैंने अमाउंट ढूंढा पहले कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से, वो 4000 माइनस से, और फिर मैंने फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ढूंढा और फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। बराबर, तो चलेगा चलेगा, यस। ओके, आई होप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ऑलराइट, चलो अभी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का, ठीक है, हमने रेशियो प्रोपोर्शन यूज कर लिया, लॉ ऑफ इंडाइसिस देखा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी देखा। Now let's go for permutation and combination. Yeah. Everyone look at question number 32. Question number 32 देखो, बोलता है in an election the number of candidate is one more than the number of members to be elected. If a voter can vote in 254 different ways,
फाइंड द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। मतलब जितना लोगों को इलेक्ट करना है उससे एक वैल्यू ज्यादा तुम्हारा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है। अगर एक बंदा 254 वेज में वोट कर सकता है तो अपने को फिगर आउट करना है कि कितने कैंडिडेट्स इलेक्शन में खड़े हैं। ऑलराइट, नाउ प्लीज पे अटेंशन ओवर हियर। इफ आई से, जस्ट अ सेकंड, ये कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 32। अच्छा, अगर मैं ये अज्यूम करता हूं कि लेट नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बी इक्वल टू n, ठीक है, तो बेस्ड ऑन देयर कंडीशन आई कैन से नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी इलेक्टेड इज इक्वल टू n माइनस 1। I'll tell you why, because वो लोग ने क्या बोला था कि जितने लोगों को इलेक्ट करना है उससे एक वैल्यू ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है। तो मैंने अगर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स n लिखा है तो द नंबर ऑफ मेंबर्स टू बी इलेक्टेड इज डेफिनेटली n माइनस 1। क्या आप सब लोग को मेरा ये अजम्पशन समझा? ओके, अब ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको ये वाला प्रॉपर्टी पता होना चाहिए, और वो प्रॉपर्टी ये है। You should know this property. NC0 plus NC1 plus NC2 dot 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 up to NCN is equal to 2 raised to n. ये एक प्रॉपर्टी है। अच्छा, ये डू यू अग्री NCN के जस्ट पहले, NCN के जस्ट पहले NCN माइनस 1 आएगा? डू यू ऑल अग्री विद दिस? ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, अब ध्यान से सुनो, तुम्हारे पास टोटल n कैंडिडेट्स है और तुमको n माइनस 1 कैंडिडेट को इलेक्ट करना है। तो अगर मैं वोटर हूं, वोटर, बराबर, तो अब मुझे फिगर आउट करना है कि मैं कितने वेज में वोट कर सकता हूं। तो डू यू अग्री, आउट ऑफ n कैंडिडेट्स मैं किसी एक को वोट दे सकता हूं, और एल्स मैं किसी 2 लोगों को वोट दे सकता हूं, और एल्स आई कैन गिव 3 वोट्स। ऐसा करते करते मैं मैक्सिमम कितना वोट्स दे सकते हैं? मैं मैक्सिमम n माइनस 1 वोट दे सकता है, क्योंकि हमें सिर्फ n माइनस 1 मेंबर्स को इलेक्ट करना है, तो मैं n माइनस 1 से ज्यादा वोट दे ही नहीं सकता। करेक्ट, तो आई कैन से अ वोटर कैन इलेक्ट 1 candidate or 2 candidates or 3 candidates। ऐसा करते करते आई कैन गो टिल n माइनस 1 कैंडिडेट्स, n माइनस 1। यस, श्रेया आपको क्लियर है बेटा कि n माइनस 1 आएगा? ओके, so now out of n candidates 1 candidate can be selected in NC1 ways। फिर आपको मालूम है और मतलब प्लस, out of n 2 candidates can be selected in NC2 ways, वैसे ही NC3। ऐसा करते करते you will go till NCN minus 1। और वो लोग ने बोला है अपने को that a voter can elect in 254 ways। मतलब ये जो सब पॉसिबिलिटीज का एडिशन है, that is 254, it is given to us। Now see, it's very simple। In order to use this property, मेरे पास NC1 से लेके NCN-1 तक है। What is missing? NC0 मिसिंग है और NCN मिसिंग है। अगर ये दो टर्म्स आ जाए तो मैं ये वाला प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं। So what I'm doing, I'm adding NC0
and NCN on both sides. मैं दोनों साइड पे NC0 और NCN ऐड कर रहा हूं, तो अब ये जो मेरा लेफ्ट हैंड साइड है वो 2⁻n हो जाएगा। एंड आप सबको मालूम है कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी से NC0 का वैल्यू हमेशा 1 होता है और NCN का वैल्यू भी हमेशा 1 होता है। यस, तो लेफ्ट हैंड साइड विल बिकम 2⁻n and this will become 254 plus 1 plus 1. So 2⁻n is equal to 256. And you know 256 मतलब 2⁸ होता है। So according to law of indices, n is equal to 8. मतलब there are total 8 candidates standing for the election. मस्त सम है। Yes, you can please take the screenshot. नहीं रोहित, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन हो रही बेटा। देखो हम जब प्रैक्टिकली वोट करते हैं ना इंडिया में, फॉर एग्जांपल अगर आपके रीजन में वोट कर रहे हो तो कैसा होता है कि वहां पे अगर 10 कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं तो 10 में से कोई एक ही कैंडिडेट पावर में आने वाला है, इसलिए हम किसी एक को वोट देते हैं। अब यहाँ पे लोग क्या बोल रहे हैं कि भाई n कैंडिडेट्स में से हमको n-1 लोगों को जिताना है, मतलब मैक्स टू मैक्स आप n-1 लोगों को वोट दे सकते हो। हम जब प्रैक्टिकली इलेक्शन लड़ते हैं तो हमें किसी एक को ही जिताना होता है, इसलिए हम किसी एक ही बंदे को वोट देते हैं। लेकिन अगर वो लोग बोलते हैं कि नहीं हमें 4 लोगों को पावर में लाना है, तो रोहित इन दैट केस आप 4 लोगों को वोट दे सकते हो मैक्स टू मैक्स। देन दैट मींस यू कैन गिव आइदर 1 पर्सन वोट, या फिर 2 को, या फिर 3 को, या फिर मैक्सिमम 4 को। आर यू अंडरस्टैंडिंग द डिफरेंस रोहित? या ऑलराइट, आई होप इसका स्क्रीनशॉट सबने ले लिया है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। फाइन, all right, now rather than solving the remaining questions, what we can do, one more thing is I can give you a strategy कि आप CA फाउंडेशन में बिजनेस मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स, लॉजिक्स वाला पेपर कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। that will be giving you more time to answer more questions. So do you want me to discuss that, or we should continue with the sums? ओके चलो, फाइन। अच्छा देखो, अभी आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं एंड यू हैव 120 मिनट्स। दैट मींस यू हैव 1.2 मिनट्स पर क्वेश्चन, विच इज 1 मिनट 12 सेकेंड्स एग्जैक्टली। आपको हर क्वेश्चन के लिए 1 मिनट 12 सेकेंड मिलता है। अच्छा, अगर आप ICAI का मॉक पेपर भी देखो तो पहले बिजनेस मैथमेटिक्स है, फिर लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट है, और फिर स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है। अब मेजॉरिटी स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो लोग पहले बिजनेस मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग सॉल्व करके फिर स्टैटिस्टिक्स वाले पार्ट में आते हैं। तब तक
ऑलरेडी बहुत सारा टाइम यूटिलाइज हो चुका होता है एंड दे आर नाउ अंडर प्रेशर मेंटली, क्योंकि टाइम कम है और उनको क्या लगता है कि यार स्टैटिस्टिक्स मतलब लेंथी क्वेश्चंस है जिसमें बहुत कैलकुलेशन करना है। नाउ अगर आप एनालाइज करो, आप आईसीआई का मॉक पेपर ले लो या कोई भी साल का पेपर ले लो, सबसे ज्यादा थियरी क्वेश्चंस स्टैटिस्टिक्स में होता है। यस, सबसे ज्यादा थियरी क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स में होता है। जस्ट टू गिव यू अ रफ आइडिया, मैं आपको ये मॉक पेपर दिखाता हूं। ओके, अब देखो क्वेश्चन नंबर 61 से स्टैटिस्टिक्स चालू हो रहा है। तो 61 चलो फिर भी एक छोटा सा क्वेश्चन है, बट 62, 63 है ना, देन इफ यू सी 67, देन 69 बहुत सिंपल है, 70, उसके बाद 74, 75, देन if you see 84, 86, 87, 88, 89, question number 90, 92, 93, 94, 96, 98, 99 and 100, ये सारे थियरी क्वेश्चंस हैं। मतलब स्टैटिस्टिक्स में थियरी क्वेश्चन सबसे ज्यादा है। अगर आपको स्टैटिस्टिक्स का थियरी आता है तो कोई भी थियरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए ना ज्यादा से ज्यादा, मतलब ये मैं एकदम एक्सट्रीम साइड पे जाके बोल रहा है, 20 सेकेंड्स लगता है। यस, अब देख लेना, इफ यू नो द थियरी देन टू आंसर दैट क्वेश्चन मैक्स टू मैक्स यू रिक्वायर 20 सेकेंड्स। तो रेदर देन स्टार्टिंग विद बिजनेस मैथमेटिक्स या लॉजिकल रीजनिंग, आप स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट देखो ना। अगर आप 15 थियरी क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करते हो, चलो 15 नहीं, मैं लोअर साइड पे पकड़ता हूं, 10 थियरी क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करते हो और हर एक को आपने 20 सेकेंड्स लिए है, मतलब आप पर क्वेश्चन 50 सेकेंड्स सेव कर रहे हो। यू आर सेविंग 50 सेकेंड्स पर क्वेश्चन। और समझो ऐसा 10 क्वेश्चन भी है, मतलब आपने 500 सेकेंड्स बचा लिए। 500 सेकेंड्स मतलब रफली 8 मिनट्स होता है, एंड रफली 8 मिनट्स, 8 मिनट में आप 7 क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते हो, ज्यादा 7 क्वेश्चंस। दैट मींस वो टाइम आप लॉजिकल रीजनिंग वाला पार्ट या बिजनेस मैथमेटिक्स वाले पार्ट में यूटिलाइज कर सकते हो, जहां पे कुछ क्वेश्चंस में थोड़ा ज्यादा सोचना पड़ता है। इज एवरीबॉडी अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रेटेजी? यस। तो अगर आप स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट में थियरी क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट कर देते हो और उसके बाद आप बिजनेस मैथमेटिक्स वाले पार्ट में या लॉजिकल रीजनिंग वाले पार्ट में जाते हो, तो आपने कम टाइम में ऑलरेडी ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए है, तो मेंटली आपका प्रेशर कम हो चुका है। यू आर ऑलरेडी फीलिंग वेरी कॉन्फिडेंट, एंड दैट पॉजिटिव एटीट्यूड इज गोइंग टू बूस्ट द थिंकिंग पार्ट इन लॉजिकल रीजनिंग एंड बिजनेस मैथमेटिक्स। यस, डेफिनेटली वो काम करता है, क्योंकि आपका ऑलरेडी प्रेशर कम हो चुका है। आप सोचोगे कि मैंने इतने कम टाइम के अंदर, मतलब 5 मिनट के अंदर अगर मैंने 12 क्वेश्चंस 10 क्वेश्चन आंसर कर लिए तो काम खत्म हो गया ना, उधर ही तुमने अपना पासा पलट दिया। यस, यू कैन ट्राई दैट। आप जो भी क्लास में आपने टेस्ट सीरीज के लिए ज्वाइन किया है या जो भी कोचिंग क्लास में आप जाते हो, आप ये स्ट्रेटेजी अप्लाई करके देखो, डेफिनेटली आप ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, अनदर थिंग, दिस इज स्पेशली फॉर दो स्टूडेंट जिन्होंने 11th 12th में एसपी नहीं लिया, सॉरी, जिन्होंने 11th 12th में एसपी लिया था। देखो, अगर आपको कंफर्टेबली मैथ्स में पास होना है तो देयर आर फ्यू टॉपिक्स जो आप छोड़ सकते हो, मतलब उस पर ज्यादा टाइम यूटिलाइज ना करके आप ये जो स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट है उसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। नाउ टॉपिक्स लाइक डेरिवेटिव, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, अब अगर आप ये टॉपिक नहीं भी पढ़ोगे चलेगा, बिकॉज इन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते।
और क्योंकि 11th-12th में आपने एसपी लिया था तो ये टॉपिक्स को यहाँ पर पढ़ना ज्यादा डिफिकल्ट होता है आपके लिए, बिकॉज देयर इज अ न्यू सेट ऑफ फॉर्मूलाज, देयर आर न्यू कंसेप्ट्स. सो रेदर देन दैट यू कैन गिव मोर टाइम ऑन स्टैटिस्टिक्स, जो आपको ज्यादा थियरी क्वेश्चंस लेके देगा और आप ज्यादा स्कोर कर पाओगे. आर यू गेटिंग दिस? तो ये स्ट्रेटेजी रखो, पहले थियरी क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स से खत्म कर लो, फिर अगर तुमको स्टैटिस्टिक्स का बाकी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना है आप वो कर सकते हो, या फिर यू कैन गो टू बिजनेस मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग, डिपेंडिंग कि आपका स्ट्रॉन्ग एरिया कौन सा है. कुछ लोग को लॉजिकल रीजनिंग ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो थियरी क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आप लॉजिकल रीजनिंग में चले जाओ. कुछ लोग को बिजनेस मैथमेटिक्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगता है, उधर वहां पे चले जाओ. कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं मेरा स्टैटिस्टिक्स सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो पहले पूरा स्टैटिस्टिक्स वाला सेक्शन ही खत्म कर लो and then go to business mathematics and logical reasoning. Okay, yeah. Now is there any other doubt strategy wise? अगर आपके दिमाग में कोई और स्ट्रेटेजी है और आपको मेरे साथ डिस्कस करना है, आप वो डिस्कस कर लो. Then I'll come to the last part of this session. Rohit, I hope I've answered your question strategy wise. Rohit? Yes Shriya, you can do that. लेकिन श्रिया अगर आप देखोगे ना, बिजनेस मैथमेटिक्स में ज्यादा थियरी क्वेश्चंस है ही नहीं बेटा. Business mathematics is all about calculation, because ratio, proportion, indices, logarithm, equations, linear programming, ये सब में आपको ज्यादा थियरी क्वेश्चंस मिलेगा ही नहीं बेटा. हाँ, सबसे ज्यादा थियरी क्वेश्चंस आपको स्टैटिस्टिक्स में मिलेगा. तो पहले वो रीजन में घुसो, उधर के थियरी क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लो. फिर जब आप बिजनेस मैथमेटिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो बीच बीच में अगर एक दो थियरी क्वेश्चन किधर आ गया तो वो आप ऑटोमेटिकली अटेम्प्ट कर ही लोगे. हाँ, देखो जहां पे अपने को मालूम है ना यहाँ पे झुंड है, तो बड़े से झुंड को फिगर आउट करना आसान है, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम्स के बीच में अगर एक दो थियरी क्वेश्चन वो लोग ने घुसाया है तो वो फिगर आउट करना, ढूंढ के निकालना मुश्किल हो जाता है. तो जहां पे झुंड है पहले उधर अटैक करो और फिर रेयर स्पीसीज पे जाओ. All right. Now, how to prepare yourself one day before the exam? Yes, Swanand, you can do that, beta. Absolutely. Now, how to prepare yourself one day before the exam? सबसे important चीज, एग्जाम के एक दिन पहले उस टॉपिक को बिल्कुल टच मत करना जिसको तुमने साल भर कभी टच नहीं किया है. हाँ, क्योंकि ना अचानक एग्जाम के एक दिन पहले ना हमारे अंदर वो संत और महात्मा जाग उठते हैं कि चल उस गलिया में भी जाते हैं जहां पे कभी हमने मुड़ के भी नहीं देखा. ऐसा नहीं करने का. जिसको साल भर नहीं छुआना उसको एक दिन पहले भी टच मत करो, भूल जाओ उसके बारे में. जो अब तक जिस पे मेहनत किया है उस पे ही फोकस करो. दैट इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग. यस. दूसरा, जो टॉपिक्स आप बहुत स्ट्रॉन्ग फील करते हो कि हाँ ये टॉपिक में मैं बहुत कंफर्टेबल है, इसमें तो मेरे को टेंशन ही नहीं है, वो टॉपिक्स पहले रिवाइज कर लो, बिकॉज वो जल्दी होगा, टाइम बचेगा. अच्छा, जो टॉपिक्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है वो रिवाइज कैसे करोगे? यू डोंट हैव टू सॉल्व एनी क्वेश्चन. उसका बस जो थियरी, जो कंसेप्ट या जो शॉर्टकट्स फॉर्मूला है वो रिवाइज करके रख देने का. उसका कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने का, बिकॉज यू आर ऑलरेडी कंफर्टेबल इन दैट टॉपिक. तो जस्ट गो थ्रू द पॉइंट सेक्शन, शॉर्टकट फॉर्मूला जो भी है रिवाइज कर लो, तो इजी टॉपिक्स खत्म हो गए. नेक्स्ट यू हैव टू कम टू द टफ टॉपिक्स. मतलब आपको जो टॉपिक थोड़ा टफ लगता है लेकिन आपने पढ़ाई किया है उसका, आप वो टॉपिक पे आ जाओ. अच्छा, उन टॉपिक्स का प्रिपरेशन कैसे करोगे? पहले आप उसका पूरा कंसेप्ट और पॉइंट सेक्शन पढ़ लोगे, फिर सॉल्व करने के टाइम पे आपको जो क्वेश्चंस में डाउट आया था या
टेस्ट पेपर में से उसके कोई क्वेश्चंस आपको तभी नहीं आए थे, यू विल रिवाइज ऑल दोस क्वेश्चंस, वो ऑटोमेटिकली तुम्हारा टफ सम्स कवर कर देगा, रिवाइज हो जाएगा बस। तो उसका कंसेप्ट पढ़ लिया, जिन क्वेश्चंस में डाउट था या जो क्वेश्चंस टफ लगे थे पहले सॉल्व करने के टाइम पे वो सॉल्व कर लिया, काम खत्म। अब जो थियरी वाला टॉपिक है, स्पेशली स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, दिस टॉपिक इज 90% थियरी एंड 10% प्रॉब्लम्स, वो लास्ट में रखने का। क्यों? उसमें बहुत सारा चीज रट्टा मारने का है, तो जितना लेट रट्टा मारोगे उतना ज्यादा टाइम तक याद रहेगा, तो वो लास्ट के लिए रख देने का। एंड कम से कम 7 घंटे का नींद करो एग्जाम के पहले। यस, आपको आपका ब्रेन को 7 आवर्स ऑफ रिलैक्सेशन देना पड़ेगा, सो दैट जब असली मैच चालू हो तब वो फुल फॉर्म में होना चाहिए, तब उसमें फटीग या टायर्डनेस नहीं होना चाहिए। तो हैव अ पीसफुल स्लीप फॉर एटलीस्ट 7 आवर्स। बस, दिस इज द वे टू प्रिपेयर वन डे बिफोर द एग्जाम। ओके, I hope this was a little helpful from my side. Yes, Vanand. टाइम सीरीज वाला टॉपिक भी 90% थियरी है, उसको भी लास्ट के लिए रखने का, लेकिन वो बहुत ही छोटा है तो उसको तो आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा में देयर आर मेनी थिंग्स टू बाय हार्ट, इसलिए वो थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है। ग्रेट। और हाँ, स्टैटिस्टिक्स में आप लोग ने कैलकुलेटर पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कैलकुलेशन ट्रिक्स पढ़ा होगा, तो जब आप स्टैटिस्टिक्स वाला टॉपिक पढ़ रहे हो तो जस्ट प्रैक्टिस दोस कैलकुलेशन ट्रिक्स, ताकि अगर एंड मोमेंट पे कुछ डाउट आया तो आप अपने फ्रेंड से या अपने कंसर्न प्रोफेसर से वो डाउट सॉल्व करवा सकते हो कि सर ये ट्रिक याद नहीं आ रहा है, एक बार बता दो। तो एग्जाम के पहले ऑल द ट्रिक्स आर वेरी फ्रेश इन योर माइंड। चलो, ग्रेट, फाइन देन। चलो, इट वाज वेरी नाइस हैविंग अ सेशन विद एवरी वन ऑफ यू। आई होप मेरे कुछ इनपुट्स आपके काम आए एंड यू परफॉर्म बेटर इन द एग्जाम। सो बेस्ट ऑफ गुड लक, not only for this exam, for all the exams in your life, and do well and take care of yourself. Thank you so much. Thank you so much, sir. Welcome, I would like to offer a vote of thanks on behalf of the entire Thane Vikasa team. First of all, thank you so much for taking out time from your busy schedule and investing a Sunday morning with us. It was an extremely wonderful session. You started with doubt solving, then took up important and tricky questions, then told us tips to solve them quickly and save your time for other questions. Then obviously it ended up with amazing strategy and one-day preparation technique. So thank you so much, sir. It was a wonderful session, and I think students must have taken a big takeaway from this session, and they'll be able to prepare with much more confidence. We really appreciate the efforts taken by you and your love for the subject. Thank you so much, sir. Thank you so much, Sanika. It was an honor. Is there any other way where students can connect to you, maybe through mail, if they have any other doubts, or for before exam, any other? They can follow me on Instagram because I don't check in my mailbox very frequently. So आपने मेरे को जिस ID पे टैग किया था on your Instagram, so @Parekh107. So if they follow me on Instagram, they can ask me doubts over there. PAREKH, Parekh107. Okay. Yeah. Thank you so much, sir. Thank you, Sanika. Let's end the meeting here. Does anybody have any other doubt or would like to say something? Or shall we end it here? Okay, let's end it then. Okay. Thank you, everyone. Thank you. Thank you.